ठीक है, I think it's okay. Then let's go ahead with that. Uh, okay, thank you. So first, what are the three financial statements that Companies Act requires to be prepared in India? There are three financial statements which are balance sheet, profit and loss account, and cash flow statement. These are three statements that are required by Companies Act 2013. और बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जस्ट एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बैलेंस शीट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ it is a statement of assets and liabilities as on a date. It is a statement of assets and liabilities as on a date. Just give me a minute. Yeah. बैलेंस शीट इज अ टी फॉर्म स्टेटमेंट. इस साइड पर हम दिखाते हैं लाइबिलिटीज और यहाँ हमने दिखाई एसेट्स. And the statement is prepared as on a particular date, as on 31st December, 30th September, 31st March. It is prepared as on a date. Assets क्या है? Assets are what a firm owns and liabilities are what a firm owes. जो फर्म ने लोगों का देना है वो सारा liability, और जो जिस पर फर्म का अपना हक है वो है assets. So we can also say that balance sheet is a statement of what a firm owns and what a firm owes as on a date. जो फर्म ने लोगों का देना है या जिस पर उनका हक है on a particular date. That is what a balance sheet is. इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ revenues and expenses for a period. It is for a period. एक particular period के लिए, पिछले एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 साल के लिए फर्म ने कितना रेवेन्यू कमाया और कितने खर्चे किए. एंड it gives you the result of operations. It tells us the result of operations, meaning whether the firm was in profit or the firm incurred losses. So balance sheet indicates financial position of a firm as on a date. Balance sheet indicates financial position of a firm as on a date. And profit and loss account statement indicates result of operations over a period. And result of operations means profit या loss. क्या किया फर्म ने? Result of operations over a period. इसके बाद बात करते हैं एक accrual concept in accounting की. While most of you know about it, accrual concept in accounting typically says कि income and expenses for a business should be accounted for as and when they become due, rather than waiting for their actual receipt or payment. किसी भी बिजनेस को अपने इनकम्स और खर्चे जब भी ड्यू हो जाए तभी बुक कर लेने चाहिए, इस बात की इंतजार किए बिना कि वो एक्चुअली कैश रिसीट हुआ या कैश की पेमेंट हुई है या नहीं. इसका एक एग्जांपल है, बड़ा क्लासिकल एग्जांपल, जैसे बैंक में इंटरेस्ट. When interest becomes due from a borrower, we show it as an income unless the account is NPA. अगर NPA नहीं है अकाउंट तो हम जिस दिन ड्यू होता है उस दिन उसको इनकम में बुक कर लेते हैं. बोरोवर ने इंस्टॉलमेंट अभी जमा नहीं करवाई है, आज हो सकता है 2 दिन बाद करवा रहा है, लेकिन मैं उसे इनकम मान लेता हूं क्योंकि ड्यू हो गया है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर टेकन इनटू अकाउंट as and when these become due, without waiting for actual receipt or payment. Without waiting for actual receipt or payment. इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड
ऑफ सेल्स ये क्या है? इट इज cost incurred in producing goods that have been sold. In producing goods that have been sold. जो आपने माल बेचा है उसको बनाने में कितना खर्चा लगा उसको कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स. एंड ग्रॉस प्रॉफिट is net sales minus cost of goods sold या cost of sales. Gross profit is net sales minus cost of goods sold या cost of sales. This is gross profit. अब gross profit से चलते हैं operating profit पे. तो operating profit is equal to gross profit minus operating expenses minus operating expenses. Gross profit minus operating expenses minus operating expenses. और ये operating expenses क्या है? Operating expenses are expenses which are in the nature of selling and administration expenses. जैसे कि advertisement expense for running an office, लीगल डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का एक्सपेंस, जो ऑफिस टाइप खर्चे हैं वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब आगे चलने से पहले एक बात दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं. डेप्रिसिएशन आपने देखा होगा, डेप्रिसिएशन हम मशीनरी पे, कार पे, बिल्डिंग पे चार्ज करते हैं. बट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो चार्ज करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी डू नॉट pay money every year for depreciation. There is no cash outflow for this expense, which is depreciation expense. So it is a non-cash expense. It is a non-cash expense. जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें से डेप्रिसिएशन क्योंकि माइनस किया था तो नॉन कैश एक्सपेंस भी माइनस किया था. अब मुझे कहा जाए सिर्फ कैश प्रॉफिट बताओ, सिर्फ कैश प्रॉफिट बताओ, तो जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसे माइनस नहीं करूंगा तो मेरे पास कैश प्रॉफिट आ जाएगा. बस कैश प्रॉफिट देख लीजिए. कैश प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्ट. That has been brought by owners or the money that belongs to owners. कैसे आ सकता है वो? दो तरीके से आ सकता है. शुरू में कैपिटल लेके आते हैं ओनर्स, सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो, चाहे कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स, उन लोगों ने कैपिटल इन्फ्यूज की. फिर कंपनी ने काम शुरू किया, फर्म ने काम शुरू किया, उस पर प्रॉफिट हो गए. सारा प्रॉफिट उन्होंने ओनर्स को बिलोंग करते हैं.
तो नेटवर्थ या इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड as amount contributed by owners or profits retained in the business. So it comprises of paid up capital and reserves. It has two components. सेकंड कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर टर्म लायबिलिटीज, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. आप इन्हें टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हैं. दिस इज अमाउंट दैट इज बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स बट इट इज पेएबल आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट बनाने के 1 साल के बाद में इसको पे करना है. लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लोगों से लिया है. किस टाइप के अकाउंट्स आएंगे इसमें? बैंकों से लिए हुए टर्म लोन, डिबेंचर्स, मनी बोरोड फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड लेंडिंग फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं. तो इसलिए अमाउंट बोरोड एंड पेएबल आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट, टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन्स. करंट लायबिलिटीज, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर्स विद इन 1 year. यहां पे विद इन 1 year है. जो अमाउंट आपको पे करना है आउटसाइडर्स को, पर बैलेंस शीट बनाने के 1 साल के अंदर अंदर पे करना है. इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोविजंस, बैंकों की सीसीओडी लिमिट्स, ये सारी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर लेते हैं. और अगर एसेट साइड पे देखेंगे तो एक आइटम में फिक्स्ड एसेट्स या नेट ब्लॉक. फिक्स्ड एसेट्स को नेट ब्लॉक भी कहा जाता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एज नेट ब्लॉक. दीज आर एसेट्स which can be used in the long term and which the firm does not intend to sell. Land, building, plant and machinery, vehicles, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. Intangible assets. आपको कोई टेंशन नहीं है. मैं इसलिए इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपके पास वहां पर एग्जाम में सवाल यहां से नहीं आएगा. जहां से सवाल आएगा वहां मैं आराम से आपके साथ टाइम दूंगा. ये मैं आपका एक थोड़ा सा ओवरव्यू रन कर रहा हूं. आई कुड हैव इवन ओमिटेड दिस पोर्शन ऑफ बैलेंस शीट. आई एम जस्ट बिल्डिंग एन ओवरव्यू. डोंट वरी अबाउट इट. जब आप रेशियो रन करेंगे ना तब हम उसके अंदर कर लेंगे. सो ये क्या है? ओडी रिड्यूसिंग डीपी पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी पार्ट. हाँ, जो भी आपकी ओडी लिमिट्स है, बेसिकली जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आएगा. मैं अभी आपको उसके बारे में एक चीज और टर्म लायबिलिटीज के बारे में बताऊंगा, अभी लिखेंगे उसको. एक इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं. Basically assets which do not have physical existence but still hold value, जैसे goodwill, patent, copyright, trademark, ये सारे intangible assets. यहाँ पे थोड़े से fictitious assets को भी हम include कर लेते हैं intangible assets को. fictitious asset जैसे इसका नाम है fictitious, जैसे कि अगर आपके कोई accumulated losses हैं वो भी इंटेंजिबल की कैटेगरी में फिक्टिशियस एसेट्स दिखा देते हैं. प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में दिखाए जाएंगे फिक्टिशियस एसेट बनाकर. ये क्या होते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? बेसिकली जब कंपनी या बिजनेस स्टार्ट होता है उससे पहले 2 डिफरेंट स्टेजेस में जब एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसके स्टार्ट होने से भी पहले वो एक्सपेंसेस पहले ही साल में राइट ऑफ नहीं किए जाते. आने वाले कुछ समय तक उनका बेनिफिट मिलना है, इसलिए हर साल थोड़ा थोड़ा उनको राइट ऑफ करते हैं. तब तक उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में दिखाते रहते हैं. तीसरा, करंट एसेट्स व्हिच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड. इस पे ध्यान दे दीजिए. व्हिच आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड टू कैश और कंज्यूम्ड विदिन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. कौन से एसेट्स होंगे? जैसे इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक्स, उनको आप बेच देंगे, बेच के डेटर्स कन्वर्ट होंगे, थोड़े दिन में पैसा आ जाएगा, तो 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे. डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स
कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कई बार बिल्स रिसीवेबल में, तो सन्ड्री डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल, कैश लाइन टू द फर्म, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे कि इंश्योरेंस, एडवांस रेंट, वो सब प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, एंड accrued income which has become due but has not been received. Then the last category is miscellaneous assets. Here we report stores which are like tools, stores in the factory, debtors which are more than 6 months old. Debtors which are more than 6 months old are reported in miscellaneous assets. And any investment made in associates, that is also reported in miscellaneous assets. यहाँ पे एक स्टार लगाकर आप एक चीज लिख सकते हैं. In case of term loans, please write installment of term loan. Installment of term loan, यहाँ पे इन term loan पे आप स्टार लगा सकते हैं और फिर नीचे लिख सकते हैं installment of term loan. Installment of term loan payable within 1 year of balance sheet date. Installment of term loan payable within 1 year from the date of balance sheet will be a part of current liabilities. Will be a part of current liabilities. Will be a part of current liabilities. बिल्कुल ठीक कहा आपने. Miscellaneous assets is non-current assets. Absolutely, you are correct. तो जो टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, वैसे तो टर्म लोन टर्म लायबिलिटीज में दिखाया जाता है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट्स 1 साल के अंदर ड्यू हो रही हैं वो करंट लायबिलिटी बन जाती हैं बिकॉज दे आर पेएबल विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. सो उनको हम करंट लायबिलिटी दिखाएंगे. अब थोड़े से एग्जांपल्स देख लीजिए, उससे और आपको क्लैरिटी हो जाएगी. पेड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया. रिजर्व्स इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ. क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल आर अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, अभी हमने देखा था. देन कम्स स्टॉक और इन्वेंट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. दीज आर सम आइटम्स व्हिच समटाइम्स कम इन द एग्जामिनेशन, इसलिए आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी. Debtors या bills receivable, they are a part of current assets. Then comes prepaid expenses. Prepaid expenses, advance rent, insurance, etc. These are a part of current assets. Current assets. Accrued income was a part of current asset. अभी हमने बात की थी. Goodwill is intangible asset. Goodwill is intangible asset. लॉसेस, प्लीज रिमेंबर लॉसेस. कई बार एग्जामिनेशन में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर लॉसेस दिए होंगे. लॉसेस विल बी अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. लॉसेस आर एक्चुअली फिक्टिशियस एसेट, ओवरऑल रिपोर्टेड अंडर इंटेंजिबल एसेट्स. देन this we have already written. Installment of term loan payable within 1 year is current liability. Next thing is tangible net worth. What is tangible net worth? Tangible net worth is net worth minus intangible assets. And net worth किसके बराबर थी? Net worth was equal to paid up capital plus reserves. Therefore, we can say that tangible net worth is equal to paid up capital plus reserves minus intangible assets. Minus intangible assets. That is tangible net worth. So tangible net worth is equal to net worth minus intangibles. And that is where sometimes when you are required to calculate tangible net worth and you are to take intangibles, losses might be given which have to be included in intangibles. ध्यान रखेंगे इसका. एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करेंगे. टेंजिबल नेटवर्थ सॉल्व करना है. यहाँ पे हमें ऑथराइज्ड कैपिटल इज 10 lakhs. पेड अप कैपिटल is 60% of authorized capital. Reserves
are 3 lakhs. Accrued losses up to last year are 2 lakhs. And loss for current year is given as 50,000. Please tell me the tangible net worth. Tangible net worth बताएंगे मुझे. Paid up capital बोला गया है 60% of authorized capital. That means 60% of 10 lakh. 10 lakh into 60%, which is 6 lakhs. So paid up capital is 6 lakh. Paid up capital is 6 lakh. Tangible net worth. Please tell me the tangible net worth. वेरी गुड. बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हैं. एक दो जगह पे थोड़ा गड़बड़ है इसमें. ये जिन्होंने 7 lakhs दिया है वो थोड़ा सा आंसर अपना दोबारा चेक कर सकते हैं. 8.5 lakhs वाले भी चेक कर सकते हैं. बाकी लोग भी कर लें. ये जो 15.5 है वो भी थोड़ा एक बार चेक करें. 15.5 lakhs तो बहुत कुछ ऐड कर दिया उसने. कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं. प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी. ऐसा नहीं कि अरे ये क्या है इसमें, तो ये तो बड़ा आसान है, मैं क्यों इसको लिखूंगा. मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है. वी माइट बी एन एक्सपर्ट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो, तब भी कभी कभी इसमें आप लिखोगे तो उसमें इसको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा. इसलिए थोड़ा सा प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे साथ में, उससे फायदा होता है इस क्लास में. हम बहुत कम जगह पे आपको लिखने को बोलते हैं. प्लीज मेक every possible benefit of this opportunity. अब ठीक है, आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया. काफी लोगों को जिनको मैंने कहा था उन्होंने दोबारा किया, ठीक किया. चलिए ये देखिए, अब टेंजिबल नेटवर्थ ऊपर लिखा है पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल मैंने आपके सामने निकाला है 6 lakhs का. ये भी आपको मैंने निकाल के बताया 6 lakhs. प्लस रिजर्व्स. प्लस रिजर्व्स. रिजर्व्स कहाँ है? ये दिए हुए रिजर्व्स, तो ये 3 ऐड कर देंगे इसमें. माइनस इंटेंजिबल एसेट. सिचुएशन यहीं पे है कि इंटेंजिबल एसेट क्या लेने. इंटेंजिबल एसेट के लिए यहां देखिए, आपको दिया हुआ एक्रूड लॉस अप टू लास्ट ईयर 2 lakhs का, तो 2 लाख. और करंट ईयर में 50,000 का लॉस और हो गया. करंट ईयर में 50,000 का लॉस और हो गया. तो टोटल लॉसेस कितने हो गए? 2.5 lakhs के हो गए. टोटल लॉसेस जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने पड़ेंगे वो हो गए 2.5 लाख के. लॉसेस कहां होते हैं? लॉसेस दिखाए जाते हैं फिक्टिशियस एसेट में. और फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली किसका पार्ट होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं. ये इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होते हैं. तो इसलिए ये बन गया 2.5. तो मेरे पास आंसर आ गया 6 + 3 - 2.5, यानी कि 9 - 2.5, which is equal to 6.5 lakhs, which is equal to 6.5 lakhs. अब जिन लोगों ने आंसर्स डिफरेंट दिए थे, स्पेशली जिन्होंने 15.5 या कुछ ऐसा आंसर दिया था, वो इसको आप देख सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है. अब इस स्टेज पे अगर जिन्होंने कहा था हमारा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या कुछ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, इसको पूछ लें, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने के लिए. लेट्स से इन केस यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, यू कैन लेट मी नो. कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको दोबारा से आपको बता दूंगा. नहीं तो आगे चलते हैं. चलिए फिर. Why last year loss added बता देता हूं मैं. What is authorized capital बता देता हूं वो भी. Authorized capital is the total capital that a company can raise. Maximum amount of capital that a company can raise. जब शुरू में कंपनी फॉर्म की जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लिखते हैं कि ये कंपनी मैक्सिमम इतनी कैपिटल ला सकती है, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल. पर सारी की सारी डे 1 पे नहीं आती, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे.
तो उसमें से कितनी पेड अप हो गई है, कितनी कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब कर दी, पे कर दी है, वो बताई गई 60%। ये है ऑथराइज कैपिटल का कंसेप्ट। उसके बाद मैं बताऊंगा अभी लॉस के बारे में आपको। और अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऐड नहीं होता, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल तो सिर्फ एक हम शुरू में फिगर लिखते हैं, बैलेंस शीट में एक्चुअल फिगर्स में काउंट नहीं होता, इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम फिगर। जो सही में पैसा कितना आया, मालिक लेके क्या आते हैं, जो कैपिटल पे कर दी है, जिसका पैसा दे चुके हैं, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। इसके उसे कंसीडर किया जाता है, ऑथराइज कैपिटल को कंसीडर नहीं किया जाता। और लास्ट ईयर के लॉसेस क्यों, लास्ट ईयर के लॉसेस हमने यहां पर किसी ने कहा कि व्हाई आर लास्ट ईयर लॉसेस एडेड, वो भी बता देता हूं। लास्ट ईयर के लॉसेस, जो भी लॉसेस हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इंटेंजिबल्स में पार्क कर दिए जाते हैं। उन लॉसेस को धीरे धीरे अमोर्टाइज किया जाता है, यानी धीरे धीरे हम उनको राइट ऑफ करते रहते हैं उसके अंदर से, जैसे जैसे हमारे पास समय गुजरता है। तो इसलिए वो लॉसेस तब तक वहां पड़े रहते हैं, पिछले साल के लॉसेस हो, इस साल के लॉसेस हो, किसी भी साल के लॉसेस हो, कहां जाएंगे वो लॉसेस? लॉसेस को आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ करके नहीं दिखाते, उन रिजर्व्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करते, इधर रखते हैं, इसलिए उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स का पोर्शन मानते हैं। और क्रेडिटर डेटर, इस क्लास में मैं पूरे एग्जाम्पल देके थोड़ा सा, एसेट लायबिलिटी टाइम बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए अगर फिर भी जरूरत हो, ये जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से बैंक से, आप लिख सकते हैं इस बारे में मेरे को। अगर आपको जरूरत हो तो हमारी स्पेशली इसके लिए क्लास होती है, अभी पीएनबी क्लरिकल में क्लास होगी उसकी, आप मुझे रिक्वेस्ट कर देना, मैं उस क्लास के अंदर आपको बैठा दूंगा थोड़ी सी टाइम के लिए। आपको पूरा क्रेडिटर डेटर सारा कंसेप्ट पीएनबी के ये है तो बहुत अच्छी है, आप उस क्लास में बैठ जाना। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, आप उस क्लास में बैठ जाना, 1 या 2 लेक्चर्स में आपको पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, डोंट वरी अबाउट इट, आप थोड़ा सा वो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग कैपिटल की। नेटवर्किंग कैपिटल इज equal to current assets minus current liabilities. It is equal to current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. या और नेक्स्ट लाइन समझने की बात कोशिश ना करें, उसको सिर्फ लिखना है, और इट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्सेस हैं आपके पास, जो लॉन्ग टर्म के लिए सोर्सेस हैं वो है नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेस थे, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो लॉन्ग टर्म सोर्स नहीं था, और लॉन्ग टर्म यूज थे ऑल एसेट्स एक्सेप्ट करंट एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट करंट एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट करंट एसेट्स। अब एक चीज यहां पे देखिए, अगर ये नेटवर्किंग कैपिटल, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ये नेटवर्किंग कैपिटल नेगेटिव में हो तो कब होगी नेगेटिव में? जब यहां पे नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड से बड़ी हो। अगर ये नेटवर्किंग कैपिटल यहां पर नेगेटिव साइड में हो, इसका क्या मतलब है? इधर ये जो नेगेटिव वाली आइटम है, ये पॉजिटिव वाली आइटम से बड़ी है, तो इसका मतलब है नेटवर्किंग कैपिटल अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है करंट लायबिलिटीज आर मोर देन करंट एसेट्स। यू कैन राइट, if net working capital is negative, it means current liabilities are more than current assets. Current liabilities are more than current assets. तभी होगा ना net working capital negative. If net working capital is negative, it means current liabilities are more than
करंट एसेट्स। छोटे छोटे से सवाल है, ये पहले वाला सवाल तो कोई खास बात नहीं है, इसको सॉल्यूशन के साथ ही देख सकते हैं। इफ करंट एसेट्स आर 60 एंड करंट लायबिलिटीज आर 40, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। नेट वर्किंग कैपिटल हो गई 20। अगला देखते हैं, आइए अगला रेशो के साथ कवर कर दिया आगे। रेशो एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज की, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की, जिसके अंदर दो रेशियोज हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की हम डिस्कशन कर चुके हैं। एंड क्विक रेशो, क्विक रेशो या इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड्स, क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एंड क्विक एसिड्स क्या है वो मैं बताता हूं। क्विक एसिड्स आर करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दीजिए तो क्विक एसेट्स आ जाते हैं। तो क्विक एसेट्स आ जाते हैं आपके पास। क्या इंडिकेट करते हैं ये दोनों, करंट रेशो और क्विक रेशो? करंट रेशो एंड क्विक रेशो इंडिकेट, दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जामिनेशन। करंट रेशो एंड क्विक रेशो इंडिकेट liquidity of the firm, liquidity of the firm, or short term solvency of the firm, or short term solvency of the firm. Basically they indicate that whether a firm, आप देख रहे हैं नीचे करंट लायबिलिटीज है, इसका मतलब ये फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स यूज करके रीपे कर पाएगी या नहीं। whether the firm is able, capable to pay outsiders money which is payable in the short term using its current assets। तो short term solvency पता चलती है, liquidity पता चलती है। You can write current ratio and quick ratio indicate ability of a firm, जो मैंने हिंदी में कहा था वो इंग्लिश में है यहाँ, ability of a firm to pay current liabilities in time, ability of a firm to pay current liabilities in time। It indicates ability of a firm to pay current liabilities in time। It indicates ability of a firm to pay current liabilities in time। Current ratio and quick ratio कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? For a banker they are used while sanctioning working capital limits। So current ratio and quick ratio are used for sanctioning working capital limits। They are used for sanctioning working capital limits। Current ratio should be more than 1, should be more than 1। और ये देखो आप, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी था, हम कह रहे हैं शुड बी मोर देन 1। अगर ये 1 से कम हो तो क्या मतलब है? 1 से कम कब होगा? जब नीचे वाला डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तभी ये 1 से कम होगा। तो इफ करंट रेशियो इज लेस देन 1, if current ratio is less than 1, it means current liabilities are more than current assets। It means current liabilities are more than current assets। और जब करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा होती हैं तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो इसलिए इफ करंट रेशियो इज लेस देन 1, इट मींस नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव। It means net working capital is negative। Net working capital is negative। वर्किंग कैपिटल और कैश क्रेडिट में तो बहुत डिफरेंस है। अभी मैं वर्किंग कैपिटल जब कवर करूंगा तो आपको वर्किंग कैपिटल बता दूंगा, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन मेथड्स देखते हुए कि कैश क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। आइए, बेंचमार्क करंट रेशियो। बेंचमार्क करंट रेशियो इज 1.33:1।
एंड आइडियल करंट रेशियो इज 2:1. होता नहीं है बट 2:1 आइडियल करंट रेशियो है. अनदर थिंग इज कि करंट रेशियो ऐसा भी नहीं है कि बढ़ता ही जाए तो बहुत अच्छा लगेगा. अगर करंट रेशियो बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि फर्म ने बहुत ज्यादा पैसा करंट एसेट्स में ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि कैश, इसका मतलब फर्म के पास बहुत इन्वेंट्रीज इकट्ठी हो गई है, बहुत सारा कैश इकट्ठा हो गया है, एंड दैट मींस those things are not being used effectively. So if current ratio is too high, that means let's say 4:1, it indicates underutilization of assets. It indicates underutilization of assets. ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, करंट एसेट में ब्लॉक कर दिया आपने कैश को. एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन और लिखिए. इफ करंट रेशियो इज हाई, if current ratio is high and quick ratio is low, if current ratio is high and quick ratio is low, क्या मीनिंग है? आपने देखा था करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस was quick assets. करंट रेशियो तो हाई है, करंट रेशियो में करंट एसेट यूज होते हैं, ये हाई है, और क्विक रेशियो लो है, यानी क्विक एसेट्स गिरे हुए हैं, which means stocks are piling up. इसका मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं. जैसे स्टॉक कम करे तो क्विक एसेट्स कम हो गए और क्विक रेशियो गिर गया. If current ratio is high and quick ratio is low, it means stocks are piling up. Stocks are piling up. Debtors नहीं, debtors तो दोनों में included है ना. Stocks are piling up. मोस्टली इन्वेंट्री ऐसे ऊपर नीचे जाती है और वो इससे पता चल जाता है एक बैंकर को. इससे एक बैंकर को पता चल जाता है कि इन्वेंट्री को ये लोग ठीक से मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने से. आइए अगले, अब एक दो सवाल कर लीजिए. करंट एसेट 60 है, करंट लायबिलिटी 40 है, तो करंट रेशियो कितना होगा? करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. यहां पर 60/40 यानी कि 3:2 या 1.5:1. करंट रेशियो हो गया 3:2 या 1.5:1 इस केस में. अगला करते हैं, थोड़ा मुश्किल लेते हैं थोड़ा सा. करंट एसेट्स आर 100, करंट रेशियो इज 2:1. करंट लायबिलिटी बता दीजिए. करंट लायबिलिटी बताइए, जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम का काम नहीं है इसमें. ये कोई आप लोगों के लेवल के लिए सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा एक वार्म अप है आपके लिए. करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये दिए हुए मुझे 100 के और ये मुझे निकालना है. करंट रेशियो है 2/1, तो अगर 2 की वैल्यू 100 को कॉरेस्पॉन्ड करती है तो 1 की वैल्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी? 1 की वैल्यू. अगर 2 की वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड करती है 100 को तो 1 की वैल्यू किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी? 50 को करेगी. 50 को करेगी. इसलिए करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 50. करंट लायबिलिटी आधी है. आपने खुद देखा है करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स की आधी है, तो आधी कर दीजिए बस. चलिए सेम सवाल है. करंट लायबिलिटी 80 है, करंट रेशियो 1.5:1 है, करंट एसेट बता दीजिए. एकदम मुंह जुबानी बता सकते हैं इसको आप, इसमें कोई बात ही नहीं है ना. करंट लायबिलिटीज के मुकाबले करंट एसेट कितने हैं? 1.5 टाइम्स है. उसको देखने से पता चल रहा है करंट रेशियो को. तो करंट एसेट्स कितने होंगे? 1.5 टाइम्स होंगे करंट लायबिलिटी के. 80 into 1.5 टाइम्स 120. 160 नहीं होगा, 120 होगा वो. चलिए ये बताइए आप मुझे. नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 200. नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 200. करंट एसेट्स दिए 800 के. करंट रेशो बताइए. अब बताइए करंट रेशो. करंट रेशो बताना मुझे. करंट रेशो, रेशो निकाल के बताइए. अब ठीक दे रहे हैं काफी लोग, अब ठीक देने लगे आंसर. पहले थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहे थे.
हाँ, दोनों ही तरह से ठीक है। आप वो पूरा लास्ट तक सॉल्व कर दें, नहीं करें, दोनों तरह से ठीक है। प्लीज सब लोग कैलकुलेट कीजिए। अब नेट वर्किंग कैपिटल 200 है, इसका मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 200। करंट एसेट उन्होंने दिए हुए 800 के, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? करंट लायबिलिटी 600 की हो गई। इसका मतलब 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। तो करंट रेशियो कितना हो गया? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट यहाँ पर है 800 के और करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली 600 की, यानी 4/3 हो गया। या सॉल्व कर दूंगा तो 1.33 is to 1, 1.33 is to 1, ये हो गया। सॉल्व कर, सबके आंसर सब ठीक आ गए हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। करंट रेशियो 1.5:1 है, नेटवर्किंग कैपिटल 300 है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बताइए। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बता दीजिए। करंट रेशियो 1.5:1 दिया हुआ है, नेटवर्किंग कैपिटल 300 है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बताइए। थोड़ा जल्दी से कीजिए सब लोग इसको, इसमें गलत भी करिए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करिए। इसमें कोई ज्यादा टाइम, ये 180 120 इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सोच के करिए इसको प्लीज, क्योंकि वो जो है 1.5:1 भी तो देना है आपको, और उधर से 300 भी तो आना चाहिए उसके अंदर डिफरेंस। बड़ा सिंपल सी बात है। नेटवर्किंग कैपिटल क्या होती है? नेटवर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेटवर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है, उसको क्या दी है उसको भी छोड़ दें। यहाँ पर करंट रेशियो है 1.5:1, यानी करंट एसेट 1.5 है और करंट लायबिलिटी 1 है। उन्होंने कहा ना 1.5:1, तो करंट लायबिलिटी 1 है, करंट रेशियो 1.5 है, यानी नेटवर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 0.5 हो गई। 1.5 माइनस 1 क्या हो गया? 0.5। पर हमें तो दिए 300 के बराबर, यानी के 0.5 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 300, तो 1.5 विल कॉरेस्पॉन्ड टू 900, 1 will correspond to 600, 1 will correspond to 600। तो करंट एसेट हो गए 900 के और करंट लायबिलिटी हो गई 600 की, वो हो गई 600 की। इस तरह से कैलकुलेट किया मैंने। ये जो 600 300 दे रहे हैं, अरे भाई करंट रेशियो ही नहीं बनेगा ना अगर 600 और 300 लगा लूंगा। वो तो आपने उसका जो 1.5:1 दिया हुआ है वहां पर, इसलिए देख लीजिए मैं आपके सामने सॉल्व किया है। नेटवर्किंग कैपिटल अगर 1.5 माइनस 1 कर दूं तो 0.5 आ जाती है, लेकिन ये 0.5 किसके बराबर दी हुई है? ये तो 300 के बराबर दी हुई है, तो यानी 0.5 will correspond to 300, that means 1.5 will be equal to 3 times 900, 1 is equal to 2 times यानी कि 600। बस, और क्या करना। बाकी आप लिख लो, अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी ना हो तो बाद में आप अपने पास करके दोबारा देखिए इसको। चलिए नेक्स्ट रेशियो देखते हैं इसके अंदर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। कोई बात नहीं, आपने ठीक कर लिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्लीज लुक एट द फॉर्मूला फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू DSCR is equal to profit after tax plus depreciation plus interest on term loan divided by annual installment of term loan plus interest on term loan बेसिकली DSCR एक बैंकर यूज करता है टर्म लोन की लिमिट्स सैंक्शन करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसकी अप्रेजल करने के लिए DSCR को हम यूज करते हैं। और इसको देखने से ये पता चलता है कि फर्म
अपने प्रॉफिट्स में से हमारे टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रिपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये मुझे इसको देखने से, आप इस फॉर्मूले को भी देख सकते हैं, लाइबिलिटी क्या है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है, मेरी इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट, इन दोनों की रिपेमेंट प्रॉफिट्स में से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बस ये पता चलता है इसको देखने से। फॉर्मूला आपने लिख लिया, यू कैन राइट सम अदर आइटम्स जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। डीएससीआर किस काम आता है? डीएससीआर इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग टर्म लोन्स, इट इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग टर्म लोन्स। Next point, it is used to ascertain ability of a firm. It is used to ascertain ability of a firm to repay term loan installments. 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 In term loan installments. And ideal ratio is 2:1. Ideal ratio is 2:1. 2:1. और इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ये ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, ये ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। एक सवाल किया था कि ये इंटरेस्ट, मेरे पार्टिसिपेंट ने पूछा, ये इंटरेस्ट एक मंथ का इंटरेस्ट है या पूरे साल का है? अरे भाई, प्रॉफिट पूरे साल का ले रहे हो तो, और एनुअल इंस्टॉलमेंट ले रहे हो टर्म लोन की, तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही है ना। जो टर्म लोन पर पूरे साल में इंटरेस्ट लगने वाला है उस प्रॉफिट में से कवर हो पाएगा या नहीं, तो इसलिए पूरे साल का। अगला देखिए, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट on term loan, on term loan, annual interest on term loan, annual interest on term loan. बेसिकली इस फॉर्मूला का क्या पर्पस है डीएससीआर से हटके? इसका पर्पस ये है कि फर्म अपने प्रॉफिट्स में से हमारी इंटरेस्ट पेमेंट की भी रीपेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इंस्टॉलमेंट को तो छोड़िए, इंस्टॉलमेंट तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट हो रही है, मेरा इंटरेस्ट पोर्शन भी रीपे हो पाएगा या नहीं उसके प्रॉफिट्स में से। तो इट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इट इंडिकेट्स कैपेसिटी ऑफ अ फर्म टू पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। हाँ, it is same as interest coverage ratio, absolutely. Fixed charges coverage ratio या interest coverage ratio एक ही बात है। इसको थोड़ी देर छोड़ दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस सब का ना ये डिस्कशन करने से मैं आपको समझा तो दूंगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो तो पूरे फॉर्मूला का मैं आपको लॉजिक समझा सकता हूँ, बट आपको कोई उसका कोई लंबा चौड़ा एडवांटेज एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाला है। दीज आर theoretical discussions, we can always conduct it. मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ, एनी डिफरेंस इन फिक्स्ड चार्जेस कवरेज एंड डीएससीआर? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। डीएससीआर जो है वो तो आपकी टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट को भी कवर करता है। देखो, टर्म लोन के केस में अगर किसी को कंफ्यूजन है, यहाँ पे दो चार लोगों ने पूछा, टर्म लोन के केस में हमें क्या क्या रिकवर करना है? एक तो अपना प्रिंसिपल रिकवर करना है, दूसरा उस प्रिंसिपल पे टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट लगता रहता है, वो रिकवर करना है। तो जो मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट बोली है, वो इंस्टॉलमेंट तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट है कि मेरे प्रिंसिपल की रिपेमेंट हो जाए, और लेकिन मुझे उसके अलावा अपना इंटरेस्ट भी रिकवर करना है। दोनों की रिकवरी देखता हूं तो डीएससीआर, और अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट रिपेमेंट कैपेसिटी देखता हूं तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो का यूज करूंगा, तो उसको यूज करूंगा। ठीक है, इसलिए आइए अब
एक क्वेश्चन इसका DSCR का एक सवाल करेंगे, थोड़ा सा आपको निकालने से फायदा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास ऐसा नहीं है, स्केल 1-2 के लिए रेलेवेंट है ये सवाल। हाँ जी बिल्कुल, ये जो इंस्टॉलमेंट आप कह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100, डेप्रिसिएशन 30, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 40, टैक्स पेड 35, एनुअल इंस्टॉलमेंट 60, DSCR निकाल के फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट निकाल दीजिए इसको DSCR को। हाँ बहुत अच्छा है, ये जिन लोगों ने एकदम से निकाल दिया, तो बिल्कुल मैनुअली ऐसे ही कर सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी लोग भी निकालिए, इसमें थोड़ी गलती होती है, ये बहुत अच्छा किया जिन्होंने 1.35:1 दिया आंसर, गलत है वो, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, इसलिए निकालना जरूरी था। प्लीज थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको, रुकेंगे नहीं यहाँ पे, प्लीज थोड़ा फास्ट करेंगे, ये टाइम इसलिए नहीं है कि आप इधर उधर अपने घर में किसी से बातें करें, प्लीज क्विकली रिस्पॉन्ड टू इट। DSCR का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है? 100 का दिया है, डेप्रिसिएशन 30 का दिया है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 40 का दिया है, इंस्टॉलमेंट कितनी दी है? 60 दी है, इंटरेस्ट कितना दिया है? 40 दिया है। तो यानी कि ऊपर का टोटल देख लो और नीचे का टोटल देख लो, ये हो गया 170 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1.7:1। अब आप कहेंगे ये क्या करना है, इसका 35 का क्या करना है, ये क्यों दिया हुआ था? कुछ लोगों ने इसको यूज कर लिया, इसका कुछ नहीं करना है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, इग्नोर इट, इग्नोर करना है, यू जस्ट हैव टू इग्नोर द टैक्स पेड, इग्नोर टैक्स पेड। क्यों? अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होता, तो आप यूज करते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड। पर यहां तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे क्या करना है टैक्स पेड का? कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बिल्कुल, ये आपने जो लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो लिखा है, बिल्कुल it is to be used only in case of profit before tax, absolutely correct। अगला सवाल देख लीजिए, ये जो सवाल अब मैं आपको आगे दे रहा हूं, ये आता है स्केल 3 एंड स्केल 4 के लेवल पे, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वहां नहीं आता, बस एनुअल इंस्टॉलमेंट निकलवा लेता है आपसे, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकलवा लेता है। अब इंस्टॉलमेंट भी आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 130 का, डेप्रिसिएशन 30 का, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन गिवन इज 40, tax paid is 35 and DSCR is 2:1, 2:1। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एकदम, ये और कैसे आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप इसको मैन्युअली इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे मालूम। क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 130 है ही, डेप्रिसिएशन 30 है ही, इंटरेस्ट 40 है, नीचे मेरे को इंस्टॉलमेंट ही तो लेनी है, इंस्टॉलमेंट प्लस 40 इज इक्वल टू 2/1। ये ऊपर का आप देख रहे हैं कि जो टोटल है वो 200 आ गया है, ये सारा जो टोटल है ये 200 आ ही गया है, तो यानी कि I plus 40 is equal to 100, तो I is equal to 60, I is equal to 60, बस 45 नहीं होगा मैम, आप चेक करेंगे इसको, हम इंस्टॉलमेंट चेक करेंगे जिन्होंने 45 दिया भी आंसर, और जिन्होंने 125 का भी आंसर दिया, प्लीज अपना आंसर चेक करो। 80 वाले लोग भी अपना आंसर चेक करेंगे, मैंने आपके सामने सॉल्व किया, वहां से देखेंगे इसको आप फिर, कोई बात नहीं, जब तक आप इसको ठीक कर लें तो बस सब सही है।
चलिए आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट कर ली है इसकी, आगे चलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, नेक्स्ट रेशियो इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो is equal to debt equity ratio is equal to long term liabilities, long term liabilities divided by tangible net worth, divided by tangible net worth. Debt equity ratio is equal to long term liabilities divided by tangible net worth. क्या पता चल रहा है इस रेशियो को देखने से? देखिए ऊपर क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बाहर वालों का वो पैसा जो 1 साल के बाद देना है, और टेंजिबल नेटवर्थ क्या है, मालिकों का पैसा। तो फर्म में मालिकों ने अपना पैसा कितना लगाया है एज कंपेयर टू मनी दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स लाइक बैंक्स, आउटसाइडर्स लाइक डिबेंचर्स। सो हाउ मच मनी ओनर्स हैव इन्वेस्टेड, ये पता चलता है कि ओनर्स का अपना कितना स्टेक है फर्म के अंदर एज कंपेयर टू मनी इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स। इस रेशो को देखने से एक किसी भी फाइनेंशियर को, शेयर होल्डर को, हर एक को इस बारे में पता चलता है। टोटल इंडेटेडनेस रेशियो, टोटल इंडेटेडनेस रेशियो में बस और कुछ नहीं करना है। टोटल इंडेटेडनेस रेशियो या टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू इक्विटी रेशियो, उसमें करना है ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेट वर्थ। कि भाई और स्ट्रिक्ट हो जाइए, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं, बाहर वालों का जितना भी पैसा देना है, कौन सा देना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो टोटल इंडेटेडनेस का मतलब हुआ जितना भी डेट है उनके पास, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेट वर्थ। टोटल इंडेटेडनेस रेशियो और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज टू इक्विटी रेशियो, टू इक्विटी रेशियो। अब आप लिख सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो क्या इंडिकेट करता है। डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इंडिकेट करता है? वो बेसिकली आपको बताता है कि मालिक कितना पैसा लाए, ओनर्स कितना लाए वर्सेस अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड इट आल्सो इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। The reason is because more the money of long-term liabilities, more the firm will have to pay interest payments in the long term, and the firm can risk becoming insolvent also. You can also write debt equity ratio indicates contribution of owners in a business vis-a-vis that of outsiders, vis-a-vis that of outsiders. मालिकों का बाहर वालों के मुकाबले कितना पैसा लगा हुआ है ये पता चलता है। बात बहुत साधारण है, सिर्फ ये ऐसी ही बातें हमारे एग्जामिनेशन में आ जाती हैं कभी कभी स्टेटमेंट्स बन के बस। और जिन लोगों ने कुछ लोगों ने लिखा हमारा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें। कॉमर्स कोई पढ़ने से थोड़ी आती है, वो तो काम करने से। आप तो बैंकर बने हुए, आपको कम से कम 3 साल तो हो ही गए हैं, अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अब इसके बाद क्या कॉमर्स के लिए उसकी फॉर्मल स्टडी की जरूरत है। If question says which ratio shows long-term solvency, and options are both debt equity ratio and debt service coverage ratio, which ratio should we choose? Debt equity ratio sir, उसका रीजन है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी क्यों पता चलती है डेट इक्विटी रेशियो से, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ज्यादा हो फर्म की, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, टर्म लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जिन पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब एक फर्म की आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म में लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जाएगी, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस कर जाती है, नेट मार्जिन रिड्यूस होता जाएगा। इधर से नेट मार्जिन गिर रहा है और उधर से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती जा रही है, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो उसकी कैपिटल को ईट आउट कर जाएगी वो। इसलिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता चलती है डेट इक्विटी रेशियो देखने से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो उस बात को इंडिकेट नहीं कर सकता। इट इज नॉट रियली द कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो।
किसी ने कैलकुलेशन मुझसे इसका किस चीज का कैलकुलेशन पूछ रहे थे यहाँ पर, कैलकुलेशन था, 1 मिनट ले देता हूं मैं, ये जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन आप इसको सिर्फ नोट कर लें, यहाँ से अगर कुछ छूटा है तो बाद में एक बार घर पे सॉल्व करें, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप यहाँ से सोल्यूशन देख लें एक बार कैलकुलेशन में, जिनका कैलकुलेशन बचा था यहाँ पर, वापस आना शायद थोड़ा मुश्किल होगा बाद में। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में तो हम 2:1 लेते हैं, डेट इक्विटी रेशियो में कोई आइडियल रेशियो इसलिए नहीं हम कंसीडर करते इसका कि आइडियल कोई सिनेरियो नहीं है, बट जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1, जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 2:1 की बाहर वालों का पैसा मैक्सिमम ओनर्स के पैसे के मुकाबले डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी सिचुएशनल भी होता है थोड़ा सा कभी कभी। अब आप डेट इक्विटी रेशियो, थोड़ा सा एक सवाल आसान के देता हूं जिन लोगों के लिए, जो लोग न्यू हैं बिल्कुल, वो लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर 60, टेंजिबल नेटवर्थ आर 30, प्लीज टेल मी द डेट इक्विटी रेशियो, प्लीज टेल मी द डेट इक्विटी रेशियो। हाँ, ये जो जिन्होंने एनबीएफसी का पॉइंट लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने, एब्सोल्युटली। उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है। क्या करना है, डेट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ। अब आपको दोनों चीजें दी हुई हैं 60/30, तो इसलिए ये 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। अगला शेयर टर्म लोन बाय नेटवर्थ इज 60 and goodwill is 10. प्लीज कैलकुलेट डेट इक्विटी। आरओसी 30 दिन के एक्सटेंशन दे सकता है। अब बता दीजिए मुझे डेट इक्विटी रेशियो, अब बता दीजिए डेट, उसकी फीस होगी 2 देके डेट इक्विटी रेशियो निकाल के। क्या करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ पर 100/60 नहीं होगा, जिन्होंने कहा 100/60 नहीं, ये गुडविल कहाँ गया, टेंजिबल नेटवर्थ बनाना होता है आपको। डेट इक्विटी रेशियो किसके बराबर होता है, डेट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, तो यानी कि नेटवर्थ में से इनटेंजिबल्स माइनस करने हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहाँ पर सिर्फ एक दी हुई है 100 की, जो है आपके टर्म लोन्स, और टेंजिबल नेटवर्थ कैसे बनेगी, नेटवर्थ माइनस इनटेंजिबल्स, यानी 60 - 10। ये जो गुडविल है ये इनटेंजिबल्स है यहाँ पर, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2:1, 2:1 गुडविल विल बी डिडक्टेड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिन्होंने 1.4:1 या कुछ ऐसे आंसर्स दिए हैं वो अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। 1.5:1, 10:7 वो भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने गुडविल को माइनस करने की बजाय ऐड कर दिया, उसमें 60 + 10 कर दिया, जबकि माइनस करना होता है टेंजिबल नेटवर्थ बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। थोड़े से रेशियोज हैं, ये छोटे छोटे रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज। दीज आर रेशियोज दैट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ अ फर्म। बेसिकली स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो देखते हैं कि एक फर्म अपने स्टॉक को कितनी फास्ट टर्नओवर कर रही है, एक फर्म अपने डेटर्स को कितना फास्ट रिकवर कर पा रही है। आप खुद ही समझ सकते हैं, एनी फर्म विच विल रिकवर द डेटर्स फास्टर, any firm which will turn around the inventory as many number of times possible is more efficient. So these ratios indicate efficiency of the unit in utilizing available resources. In utilizing available resources. सबसे पहला रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, which is equal to sales या cost of sales divided by average inventory. Average inventory. आइडियली कॉस्ट ऑफ सेल लेना चाहिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल ना दिया हो तो सेल भी ले सकते हैं। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मैंने आपको बताया, हायर द रेशियो मोर एफिशिएंट द फर्म इज इन मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जितना ज्यादा होगा उतना ही फास्ट टर्न अराउंड हो रहा है। एवरेज इन्वेंट्री क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक
plus closing stock divided by 2. Average inventory is opening stock plus closing stock divided by 2. Opening stock plus closing stock divided by 2. वो हो गया एवरेज इन्वेंट्री। अगला रेशियो डेटर से कंसर्न देखते हैं, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो या डेट कलेक्शन पीरियड। डेटर्स वेलोसिटी रेशियो या डेट कलेक्शन पीरियड, द फॉर्मूला इज एवरेज डेटर्स, वहां भी वही सेम फॉर्मूला लगता है एवरेज के लिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्यों लेते हैं? डेटर्स तो क्रेडिट सेल पे ही जनरेट होते हैं, कैश सेल करने पे तो डेटर बनेगा नहीं। मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर आपको मंथ्स में कैलकुलेट करनी हो डेट कलेक्शन पीरियड तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेज में कैलकुलेट करना हो तो 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर डेज में कैलकुलेट करना हो तो। क्रेडिट सेल ना दियो हमें, अगर क्रेडिट सेल ना दियो सिर्फ सेल दियो तो भाई एज्यूम कर लेंगे कि सारी की सारी सेल जो दी हुई है वो क्रेडिट पे की गई है, तो हम एज्यूम कर लेंगे, तो फिर सारी सेल ले लेंगे अगर क्रेडिट सेल अलग से नहीं दी हुई है तो। आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए मुझे। डेट कलेक्शन पीरियड बता दीजिए, डेटर्स है 600 के, क्रेडिट सेल्स है 9000 की, और डेट कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स बता दीजिए। डेसिमल का ध्यान रखेंगे, डेसिमल का ध्यान रखेंगे, जल्दी से बता दीजिए डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड बता दीजिए। Please tell me the debt collection period. Please look at the decimal. Decimal. ये क्या हो रहा है? 1.2 कैसे आएगा? 4 months कैसे आएगा? अरे डेट कलेक्शन पीरियड में क्या करना है? एवरेज डेटर्स विच इज 600, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स दी हुई है उन्होंने 9000 की, मल्टीप्लाई करना है क्योंकि महीनों में निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसे सॉल्व करिए, तो देखिए आंसर आएगा 0.8। आंसर आता है 0.8, आंसर आता है 0.8 इसको सॉल्व करने पे। तो ये हो गया 0.8 मंथ्स। 0.8 मंथ्स डेज की टर्म में देख सकते हैं तो रफली अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 24 डेज, क्योंकि 0.8 इंटू 30 करता हूं तो 24 हो जाता है। 0.8 मंथ्स, बस यही गड़बड़ हो जाती है, काफी सारे लोग इसको 8 मंथ्स लिख देते हैं जल्दी में। चलिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, अब रेशियो देखिए पहले फिर लिखने का काम करेंगे। जीपी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट divided by net sales, gross profit divided by net sales into 100, gross profit divided by net sales into 100, and net profit ratio is equal to net profit divided by net sales into 100 into 100। इन रेशियोज का कोई आइडियल बेंचमार्क रेशियो नहीं होता, नो आइडियल रेशियो फॉर जीपी रेशियो और एनपी रेशियो, नो आइडियल रेशियो। क्यों? क्योंकि ये तो एक फर्म बिजनेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से उनका रेशियो हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एज अ बैंकर या एज एन इन्वेस्टर पीपल विल लुक एट द सेम रेशियो फॉर अ फर्म फॉर मल्टीपल ईयर्स, 2-3-4 साल का देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन से कंपेयर कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ फर्म का, अगर जूता बनाने की फर्म है तो दूसरी जूता बनाने की फर्म के जीपी रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, हम इंडस्ट्री प्रैक्टिस देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको काम लिया जा सकता है। इट इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द यूनिट ओवर द ईयर्स अपने आपस में, या कंपेयर्ड अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। लिखने की जरूरत नहीं है उसको, सवाल पे नहीं आता वो, या कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। ये है एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो येलो में है। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीजेस बट नेट प्रॉफिट रेशियो गोज डाउन,
इट मीन्स, क्या मतलब है इस बात का? इट मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गोइंग अप, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गोइंग अप। मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर जीपी रेशो तो ऊपर जा रहा है और नेट प्रॉफिट रेशो नीचे आ जाए, तो इसका मतलब क्या चीज उसमें उसको घटा रही है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि नेट प्रॉफिट का रेशो नीचे आता जा रहा है। इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गोइंग अप। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म ने जितनी कैपिटल लगाई उस पर कितना पैसा कमा रही है, कितना परसेंटेज रिटर्न आ रही है। और ये रेशो क्यों जरूरी है कि भाई मैं मार्केट से बोरोइंग करता जा रहा हूं, बोरोइंग करने की कॉस्ट है 9% और मेरी रिटर्न आ रही है 4%, तो फिर मेरे को बोरोइंग करके क्या फायदा होगा? मेरा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही ज्यादा पड़ रही है। सिमिलरली आप इन्वेस्टर हैं तो ये बात देखना चाहेंगे कि हमारे पैसे पे रिटर्न कितनी बना के दे पाएगी ये फर्म। आप बैंकर हैं तो भी देखना चाहेंगे कि इनकी रिटर्न हमारे ब्याज की दर से तो ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो हमारा इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, रिटर्न किस फॉर्म में देखी जाती है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम कहते हैं पीबीआईटी या ईबीआईटी। PBIT, profit before interest and tax या earning before interest and tax divided by capital employed, जितनी कैपिटल लगाई है फर्म ने, divided by capital employed multiplied by 100। 100 से क्यों किया? परसेंटेज में निकाल रहा हूं। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या क्या चीजें होंगी उसमें? उसमें चाहे बाहर वालों का पैसा लगाओ चाहे अंदर वालों का, यानी कि ओनर्स का पैसा भी और आउटसाइडर्स का पैसा भी लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है, तो वो पोर्शंस हो जाएंगे टेंजिबल नेटवर्थ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यानी कि द रेशियो इज पीबीआईटी या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसके साथ हमारा रेशियो एनालिसिस और ये फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर खत्म होता है। थोड़े से टॉपिक्स हम दोबारा करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, रिगार्डिंग ब्रेक इवन एनालिसिस, पीवी रेशियो, वर्किंग कैपिटल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो सारा टॉपिक हम दोबारा करेंगे। समवन आस्क्ड मी अबाउट कुछ वर्किंग कैपिटल सीसी लिमिट्स के बारे में, वो सब बता देंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो की यहाँ जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं करवा देता आपको। प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली शेयर से कंसर्न्ड है, हमारे इस एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट नहीं। अगर आप जेआईबी की क्लास में बैठे हो तो जरूर करवाता मैं प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, सब कुछ करवाता। ईबीआईटी क्या है? ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेसिकली वो प्रॉफिट जो जिसमें अभी मैंने इंटरेस्ट और टैक्स को अलग नहीं किया, उससे पहले जो मेरे पास प्रॉफिट बचा है उसको मैं कहता हूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। ये जो है वो भी मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, आपके ग्रुप पे ही बता दूंगा वो। अनसिक्योर्ड लोन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखिए अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट तो होते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप क्या क्या चीजें आती हैं? टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड लोन्स। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि दे आर अ पार्ट ऑफ
long term loans. They are not part of term loan from banks. They are part of long term liability. They are part of long term liability. क्वाजाई एक्विटी की हमने कल बात की थी. क्वाजाई एक्विटी हमने जो सबऑर्डिनेट डेट स्कीम थी उसके अंदर बात की थी क्वाजाई एक्विटी की. वहां पर सिर्फ वर्ड यूज किया क्वाजाई एक्विटी, बट उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्वाजाई एक्विटी क्या है. क्वाजाई एक्विटी जैसा एक इंग्लिश कॉनोटेशन है कि एक्विटी के जैसा. तो एक्विटी के जैसा यही माना गया है कि जो डेट्स हैं, जो ओनर अपने आप से एक्विटी की फॉर्म में कंट्रीब्यूट ना करके अपनी ही फर्म को डेट दे दे, इस तरह से दे दे कि उस डेट की रीपेमेंट 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दे के छोड़ दे, भूल जाए एक तरह से. ऐसे वाले डेट्स को क्वाजाई एक्विटी वहां पे माना गया है. इसीलिए उन्होंने डेट्स और एक्विटी की बात वहां पर आती है उसके अंदर. EBIT includes non-operating income. EBIT will include all sort of, see मेरे को तो अर्निंग देखनी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब उसके अंदर EBIT जब आप अपना अर्निंग निकालते हैं तो सारी अर्निंग्स आएंगी उसके अंदर. और जहां तक प्राइस अर्निंग रेशियो की बात है मैं करवाता हूं उसको भी. हाँ, PBIT एंड EBIT आर सेम, बिल्कुल. शेयर्स की टर्म में दो चीजें ध्यान दे देंगे हम. एक है मेरे पास EPS विच इज अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर विच इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो पेड अप कैपिटल के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उससे डिवाइड कर देते तो अर्निंग पर शेयर आ जाती है मेरे पास. और अब उसके बाद मार्केट में शेयर का प्राइस एक मार्केट प्राइस पर शेयर होता है. जैसे किसी शेयर का शेयर कैपिटल प्राइस तो 10 रुपए का है, लेकिन मार्केट प्राइस हो सकता है उसका शेयर का प्राइस 90 रुपीज चल रहा हो, तो मार्केट प्राइस पर शेयर है. अब मेरे को देखना है कि ये शेयर एक्चुअली मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना महंगा है और कितना सस्ता है. तो उसके लिए मैं निकालता हूं प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो. प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू market price divided by earning per share. divided by earning per share. एज्यूम कर लीजिए जैसे कि अगर एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है और उस पर अर्निंग पर शेयर उस शेयर के ऊपर 2 रुपए आ रही है, लेट्स से अर्निंग पर शेयर 2 रुपए आई, तो प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 50 का. इसका मतलब बेसिकली अगर मैं ये शेयर लेता हूं तो इस इनकम से ये 50 टाइम्स इसकी वैल्यू है. तो प्राइस अर्निंग रेशियो tells us how expensive or cheap a share is as compared to earning per share. That is price earning ratio. चलिए इसके साथ मैं इस क्लास को यहाँ एंड कर देता हूँ. वो 0.8 मंथ्स आया था आंसर. हाँ बिल्कुल ठीक है, 0.8 मंथ्स आया था. और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं और बाकी फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे.